Directions for the following three items. Read the following three passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. Scientists studied the vernal window, transition period from winter to the growing season. They found that warmer winters with less snow resulted in a longer lag time between spring events and a more protracted vernal window. This change in the spring timetable has ecological, social, and economic consequences for agriculture, fisheries, and tourism. As the ice melts earlier, the birds don't return, causing a delay or lengthening in springtime ecological events. 41. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. 1. Global warming is causing spring to come early and for longer durations. 2. Early spring and longer period of spring is not good for bird populations. इकोलॉजिकल इवेंट में तो चेंज कर रहा है, बर्ड जल्दी नहीं जाती हैं, लेकिन वो गुड है कि नहीं ये नहीं पता. सो 1 is the answer. A is the answer. Passage 2. A global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of the amount of nitrogen a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution, says that using too much fertilizers will lead to increased pollution of waterways and the air. Currently, the global average for nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to cropland goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, says a study. More than half of the world's population is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic nitrogen, which is needed to provide high crop yields. Plants take the nitrogen they need to grow, and the excess is left to the ground, water, and air. This results in significant emissions of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone depleting gas, and other forms of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes and rivers and contamination of river water. 42. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational, and crucial message implied by the passage? A. An enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. B. Production of synthetic nitrogen fertilizers cannot be stopped as it will adversely affect global food security. C. Alternatives to crop and require excess of nitrogen should be identified and cultivated. D. Conventional agriculture using synthetic fertilizers should be replaced with agroforestry, agroecosystem, and organic farming. So A is the answer. Enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. Efficiency of use is important because otherwise if we reduce the fertilizer, production will reduce, and if we use as we are using or more as we need more food, we need nitrogen, then it will harm our environment, land and water. So A is the answer. परिच्छेद 3. पर्यावरण विषयक शब्दावली में धारणीय जीवन शैलियों और साथ साथ जलवायु न्याय को महत्वपूर्ण सिद्धांत रूप में माना जाता है. ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक विकल्पों को प्रभावित करते हैं. अभी तक हमारी जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ताओं और करारों में थे. दोनों सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं. न्याय न्यायिक अर्थ में तो सुपरिभाषित है, तथापि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके वैज्ञानिक और साथ ही सामाजिक राजनीतिक अभिप्राय हैं. अगले कुछ एक वर्षों में
यह निर्णायक प्रश्न खड़ा होगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पीड़ित व्यक्तियों को अवलंब देने के लिए संसाधन, प्रौद्योगिकियां और विनिमय किस प्रकार उपयोग में लाए जाएंगे। जलवायु के विषय में न्याय दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन के लिए अवलंब और हानि और नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति की कहीं अधिक व्यापक धारणा शामिल है। 43 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त, तर्कसंगत और निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ए, जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों के विषयों में विस्तार से बसा हुआ होना चाहिए। बी, पर्यावरणीय संसाधन पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है और उनका दोहन हुआ है। सी, वृद्ध संख्या में जलवायु परिवर्तन के शिकार लोगों, जलवायु शरणार्थियों की समस्याओं का निपटारा करने एक आसन मुद्दा सामने है। डी, जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्रायों में अधिकतर विकसित देशों के कारण हुए हैं, इसलिए इसके भार वहन का उनका अंश अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। सो इसका आंसर भी ए ठीक है। जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों, समझौतों के विषयों में विस्तार से बसा हुआ होना चाहिए। सो ए। Passage 3. Along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Both the principles have bearings on political and economic choices of the nation. So far in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among nations. Justice in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. The crucial question in the next few years will be how resources, technologies, and regulations are used to support the victims of climate change. Justice in climate is not confined to actions relating to mitigation, but includes the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damages. 43. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational, and crucial message conveyed by the passage? A. Climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts agreements. So यही सही लगता है। B. Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. Resources unevenly नहीं है तो pollution की बात है, because global warming etc. C. There is an impending issue of dealing with a huge number of climate change victims, climate refugees. अभी ये नहीं है इस पैसेज में, maybe in future. D. Climate change in all its connotations is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. So answer is A. 44. A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with S annual rate of interest. Then which one of the following is correct? R is equal to S, R is greater than S, R is less than S, R is less than equal to S. तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट R पर एनुअली करते हैं अमाउंट, तो जो अमाउंट आता है एंड में वो लेस होता है जब हम इसी R रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं, चाहे हाफ ईयरली और क्वार्टरली, तो ज़्यादा होंगे. हाफ ईयरली विल बी मोर देन दिस and then quarterly will be more than even than half yearly amount. So अगर ये सेम वैल्यू आती है Q, इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हाफ ईयरली में यूज किया गया वो लेस देन S है. सो आंसर इज C. ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है दैट अगर हम
एनुअली कंपाउंडेड करते हैं विल बी लेसर देन सेम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो लेस देन होगी हाफ ईयरली से या क्वार्टरली से, या इफ वी टेक एनी नंबर in a year. Single amount annually will be less. How many natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by 3 natural numbers 6, 7, 8 and 9? इसका मतलब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है नेचुरल नंबर से, और वो कोई भी हो सकते हैं। 6, 7 नंबर्स मीन्स डिफरेंट नंबर्स हैं। रिमाइंडर 31 आता है, तो हम इस नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 31 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आएगा 1155। तो 1155 जो है पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम इसके फैक्टर कर लें, वो नंबर्स होंगे जो इसे डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ लिखते जाते हैं, 1 से तो हो गई, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 टाइम्स 2, 8 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो 385 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो ये नंबर हम काउंट कर लेंगे बाद में। फिर हम इसे 5 से करें, 30 एंड 7 टाइम एंड 7 टाइम, तो 77 एंड 5 से हो जाएगा। फिर हम 7 से कर दें, सो 11 आ जाएगा, सो 11 से भी होगा। हम इनके कॉम्बिनेशन कर लें, तो यहाँ लिखते चलते हैं, 3, 5, 7, 11 और 77 होगा। देन वी हैव 385 है। अब हम यहाँ देखें 15 से करें, तो 15 से भी होगा, बिकॉज 15 7 टाइम 105 होता है, तो 105 के बाद बच गया 10, तो दैट विल बी 77, तो 15 भी एक आएगा, सो 15। अब 7 या 21 से भी होगा, 21 से आप चेक कर सकते हैं। देन 11 इंटू 3 33 से होगा, इनसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। एंड 7 पंजे 35, 35 से होगा। देन वी हैव 11 इंटू 5 55 होगा, 11 इंटू 7 77 ऑलरेडी लिखा है। 15 इंटू 3 45 से शायद ना हो, सो 45 इज नॉट कमिंग, 55 आ गया। देन 77 105 से होगा। Then if you keep on doing, this will be 165 and 231। ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखनी होगी, इनसे डिवाइड करना होगा, और ये कॉम्बिनेशन ही आते हैं। जैसे कि 165 किसका कॉम्बिनेशन है, 11 एंड 15 का, इनका कॉम्बिनेशन 165 आ गया। देन वी सी 21 एंड 11, तो 21 और 11 का आ जाएगा 231, 21 और 11 का कॉम्बिनेशन। सो इसी में से कॉम्बिनेशन बनेंगे और हम लिखते रहेंगे। देन इट कम्स 385 विच वी हैव ऑलरेडी रिटन, एंड देन 1155, वो भी एक होगा। सो कुल मिला के ये आ जाते हैं 9 हैं, काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 में, लेकिन 31 तो रिमाइंडर बच रहा है, तो 31 से जो बड़े वाले हैं वो आपको काउंट करने होंगे। तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1155 है, 9 हो गए। So answer is D. 46. Let PP, QQ and RR be two-digit numbers where P is less than Q is less than R. If PP plus QQ plus RR is equal to TT0, where TT0 is a three-digit number ending with 0, consider the following statements. The number of possible values of P is 5. Number of possible values of Q is 6. So here we see 2-digit means maximum 99 2-digit, और 11 से शुरू होंगे। तो यहाँ पर नंबर होंगे 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ये नंबर होंगे। अब 3 है, 3 3 का लेना है, तो जैसे 1 1 ले लिया,
then we take 2 2 and then we take 7 7. तो 7 3 10 0 हो गया एंड 7 2 9 और 1 10 और 11 110 आ गया। अब 110 में ये 0 है। इसी तरह हम कई नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम देखें, हम लास्ट के नंबर को इन्हें देखें, जैसे कि यहाँ 1 2 7 था, तो किस किस से 0 आ सकता है? तो 1 2 7 से आया, एक आएगा 1 4 5 से, 5 5 10, एक आएगा 1 3 6 से, 5 5 10 हो गया। लास्ट के ये लिख रहे हैं हम, तो इसी को हम बना लेंगे। ये 11 44 55 है, ये 11 33 66 है, ये 11 44 55 है। इसके अलावा होंगे 2 3 5। अब 2 3 5 में अगर हम देखें तो ये हो गया 22 एंड 33 एंड 55, तो इसमें ये 20 आ जाएगा। तो 5 5 10 हो गया, एक और फिर ये 5 और 5 10 और 11, ये तो 110 ही आया। बट वी हैव नंबर्स लाइक 3 8 9, इसके अलावा होंगे 3 8 9, तो ये हो गया 17 और 320। अब हम 33 88 एंड 99 को जोड़ें तो लास्ट की दो डिजिट जो है 10 की जगह 20 आएगी इस केस में। और इसके अलावा हो सकती है 479 47। तो हमने क्या करा, पहले 1 के देख लिए सब, 1 4 5 1 3 6, फिर 2 3 5 देख लिया, देन 3 का देख लिया एंड 4 का देख लिया, एंड इसके अलावा 5 7 8, और फिर 5 के बाद क्योंकि P जो है शुड बी लेस देन Q एंड 5 6 9 इफ वी से, तो ये होगा 5 6 9 भी होगा, ये भी 20 देगा। तो अगर हम नंबर काउंट करें तो एक ये हो गया, एक 1 3 6 1 4 5 2 3 5 3 8 9 5 7 8 4 7 9 5 6, इतने हो गए। तो P की वैल्यू कितनी हुई, 1 2 3, 3 हो गई 4 और 5, तो 5 ये करेक्ट है। और Q की वैल्यू जो मिडिल वाली वैल्यू है, तो मिडिल वाली वैल्यू एक तो 3 है, दूसरी 4 है 2, तीसरी 8, चौथी 7, पांचवी 6, एक ही 1 2 7 भी है, सो वी राइट 1 2 7। तो अब 6 हो गई, 1 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका था, 2 नहीं काउंट हुआ था। Q में 2 3 4 8 7 एंड 6, तो ये 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हो गई। तो सेकंड भी करेक्ट है, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। हिंदी में पहले क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखते हैं, देन पैसेज हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में। 47, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 formed by the digits 1 2 3 4 where none of the digit is repeated। तो 1 2 3 4 से बनाने हैं, तो इन्हीं को हम अल्टरनेट करते रहें और 2000 से कम भी रखना है। सो ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि जहां हमने इस फर्स्ट डिजिट को 2 किया तो वो आगे फिर अगर कोई भी डिजिट रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, तो ये तो हम, सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 1। फिर इसके बाद आप कुछ भी लिखते रहें, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं पहले, जैसे कि 3 2 4, यहाँ पे इसका रिवर्स भी लिख लें 1 2 4 3। तो अभी अब 2 3 को चेंज किया, फिर यहाँ 1 3 4 2 हो गया। इसके बाद तो हमने 1 के बाद 2 ले लिया, 3 ले लिया, उसके दोनों कॉम्बिनेशन, फिर 1 के बाद 4 ले लिया एंड 2 3 एंड 3 2 हो जाएगा, 1 4 3 2। अब इन्हें जोड़ लिया जाए, तो अगर हम जोड़ते हैं तो 2 3 5 5 3 8, 8 एंड 8 16 17 18, 8 है, 1 कैरी ओवर है। अब नेक्स्ट इज 3 2 5 5 4 9 9 और 4 13 और 2 15 एंड 3 18 और एक कैरी ओवर था 19, 1 कैरी ओवर। 5 और 4 9 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19, 1 कैरी ओवर। सो 1 2 3 4 5 6 और एक वो 7 9 8 8। So A is the answer. What is the number of selected
out of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction। तो ये सर्कल है, 12 चीज रखी है, तो हमें 10 कॉन्जिक्यूटिव लेनी है। तो 12 हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, वी कैन। सो पहली ही वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 12 चॉइसेस हैं। उसके बाद तो जो भी है कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं, और लेना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है, उसकी भी हमारे पास चॉइस नहीं है। सो ओनली 12 विल बी द आंसर। इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे। तो 10 to the power 10th मतलब हमें 7 से डिवाइड करें तो हमें रिपीटेड मिल जाता है। तो अगर हम 10 की पावर 10 लिखें मतलब 10 डिजिट्स आगे लगा दें इसके, और इसे 7 से डिवाइड करें। तो 7 से करेंगे तो पहली बार जाएगा 1 टाइम्स, बचा 3 30 हो गया, 4 टाइम्स 28 20 बचा। सो 20 के बाद हम इस डिजिट पर आ गए, 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 से 2 टाइम्स जाएगा, तो बचा 6 60 हो गया। 60 को हम करेंगे तो 8 टाइम्स 56, 4 बचा, ये 40 हो गया। 40 हुआ देन मीन्स 5 टाइम 35 हो गया, 5 बचा, ये 50 हो गया। 7 टाइम 49 हो गया, 1 बचा, अब 10 आ गया। तो यहाँ से रिपीट होने लगेगा, 10 आया मतलब फिर से 1 4 यही नंबर आने लगेंगे। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर 8 तक जाएगा। सो 1 4 2 8 पे रुक जाएगा, और हमारा ये कुछ रिमाइंडर बच गया। तो जब 4 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 7 × 8 56 था, तो रिमाइंडर हो गया 4। और 4 मीन्स संडे आज है तो नेक्स्ट डे मंडे हुआ। 4 हमें करने, ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर इज दिस ए। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, each signal changes color from green to red and then from red to green. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. So red to green होने में क्या होगा वो नहीं लिखा है, तो हम उतना ही मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रेड टू ग्रीन, फर्स्ट ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन होगा। यहाँ जो दिया गया है फ्रॉम ग्रीन टू रेड दिया गया है, और सेकेंड्स हैं 25, देन द सेकेंड टेक्स 39 एंड थर्ड टेक्स 60। तो ग्रीन टू रेड, तो पूरा सिग्नल क्या है, रेड हो गया, तो फिर रेड टू ग्रीन होने में मतलब 50 हो जाएंगे पहले के केस में। 2 टाइम्स कर देंगे हम हर एक का। देन द ड्यूरेशन फ्रॉम ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। ड्यूरेशन मीन्स जितनी देर वो रहते हैं, दैट इज ऑल्सो सेम। एट 2 PM दे टूगेदर टर्न ग्रीन। जब सब ग्रीन थे तो 2 बजा था PM। एट वट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट। तो यहाँ ग्रीन होंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली होना है अब की बार, तो दैट में बी मीन्स दे आर टूगेदर। सो एलसीएम लेना है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर ग्रीन हुए, उसके बाद रेड हुए, लेकिन यहाँ साथ में नहीं हुए, एंड इट कीप्स ऑन दैट दे कीप चेंजिंग कलर्स, और कब फिर साथ में ग्रीन होंगे। तो हमारा पूरा ये जो साइकिल है वो 50 का हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स 78 का, और दूसरा थर्ड हो गया 120 का। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 50 78 एंड 120 का एलसीएम। तो एलसीएम लें। सो हम 50 78 एंड 120 का एलसीएम लेते हैं। सो 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो 25 39 60। इसके बाद 5 से करें, 5 टाइम्स 39 एज इट इज एंड 12। अब 3 से करें, 3 5 एज इट इज एंड 13 एंड 4। तो अगर हम इस सम को मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 10 × 3 30 × 5 150 × 4 × 13, ये आ जाता है 7 8
00। ये क्या हुए, सेकंड हुए। हमें इसे मिनट में बदलना, फिर घंटे में। सो मिनट में बदलेंगे तो हम 60 से डिवाइड देंगे और घंटे में ये हो गया, तो दिस विल बी, तो ये वैल्यू कुछ 2.166 आ जाएगी। लेकिन ये मिनट भी है यहाँ और घंटे भी है, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसे हटा देते हैं एंड वी डिवाइड इट बाई 60 ओनली। तो ये आ जाएगा 130, और 130 का मतलब हुआ, ये मिनट्स हैं तो इसका मतलब ये 2 आवर्स 10 मिनट्स हुआ। 2 आवर एंड 10 मिनट्स मीन्स 4.10 PM हो जाएगा। सो आंसर इज पी। अब ये पैसेज को पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, कृषि भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमियों, वनों, आर्द्र भूमियों, चरागाहों आदि जैसे कृषितर पद्धतियों को खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपभोग के प्रति एक तंत्रानुसारी उपागम को सुकर बनाता है। वह ग्रामीण और जनजातीय समुदायों को पूरे वर्ष निर्वाह करने और नैसर्गिक आपदाओं तथा मौसम के कारण होने वाली कृषिजन्य खाद्य की कमियों से बचे रखने में सहायक होता है। चूंकि वार्षिक फसलों की अपेक्षा प्रतिकूल मौसम दशाओं में वृक्षों में पनपने की प्राय अधिक क्षमता होती है, फसल न होने के कारण हुए खाद्य के अभाव की अवधियों से वन आधारित खाद्य प्राय एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। वन आधारित खाद्य मौसमी फसल उत्पादन अंतरालों के बीच भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 51 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा दिए गए सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों और समुदाय के स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाले वृक्षों से बदल देना चाहिए। बी, भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। सी, भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमि और निम्नीकृत क्षेत्रों को कृषि वानिकी पद्धतियों से बदल देना चाहिए। डी, परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि परितंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। सो इसका आंसर डी है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। रीड द फॉलोइंग 3 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1, sourcing food from non-agricultural lands, uncultivated systems such as forests, wetlands, pastures, etc. In addition to agricultural lands, enables a systematic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear of natural disasters and season-induced shortfalls of agricultural food. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather conditions than annual crops, forest foods often provide a safety net during periods of food shortages caused by crop failure. Forest foods also make important contributions during seasonal crop production gaps. 51. Which one of the following statements best reflects the most logical and rational message conveyed by the author of the passage? A, food yielding trees should replace other trees in rural and tribal areas and community owned lands. B, food security cannot be ensured in India with the present practice of conventional agriculture. C, wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry systems to help the poor. D, agro ecosystems should be developed in addition to or along with conventional agriculture. So D is the message from this
जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 तो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है. दिस इज द क्लोज टू दिस पैसेज. परिच्छेद 2 प्रतिजैविकों के उपयोग, दुरुपयोग और अपसेवन के बारे में जागरूकता आम जानकारी है, जैसे यह कि मुर्गे मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का क्या असर होता है. प्रतिजैविक निर्माता कंपनियों द्वारा अपने अपशिष्ट को उपचारित न कराने से पर्यावरण पर जो असर होते हैं उनके विषय में अभी तक कुछ भी विस्तार या गंभीरता से बहुत कम चर्चा की गई है. प्रतिजैविक फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण औषध प्रतिरोधी संक्रमण को बढ़ा रहा है. औषध निर्माण संयंत्रों के चारों तरफ औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है. 52 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा दिए गए सर्वाधिक युक्तियुक्त और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है. ए. उपयुक्त बहिर्प्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है. बी. लोगों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है. सी. औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आधुनिक चिकित्सा देखभाल में अंतर्निहित है. डी. औषध निर्माण कंपनियों को भीड़ भरे कस्बों और शहरों से बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए. सो इसका आंसर ए है, लेकिन हम इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे. परिच्छेद 2 उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी शिक्षा पूरी कर गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं. जैसे कोई दौड़ने से पहले चलना सीखता है, उसी तरह कोई आधारभूत कौशलों को प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर कौशलों को प्राप्त करता है. ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियां सामने आई हैं और अशिक्षित कार्य बल रखने के गंभीर दुष्परिणामों में से एक यह है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलने में अक्षम होंगे. प्राथमिक स्तर पर सशक्त अधिगम की बुनियाद बनाए बिना उच्चतर शिक्षा या कौशल विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकती. 53 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है. ए. विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है. बी. भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता क्योंकि वह ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दे रहा है और ना ही उसे संवर्धित कर रहा है. सी. हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए. डी. विद्यालयों में अनेक बच्चों के माता पिता निरक्षर हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभों के प्रति जागरूक नहीं है. सो इसका ये आंसर करेक्ट लगता है, जो बिल्कुल लॉजिकल है. इंग्लिश में देखते हैं. पैसेज 2 व्हाइल अवेयरनेस ऑन यूज मिसयूज एंड abuse of antibiotics is common knowledge, as is the impact of doing pottery with antibiotics, the environmental impact of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug-resistant infections. The occurrence of drug-resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plants is well known. 52. Which one of the following statements best reflects the most logical and practical message conveyed by the passage? A. It is necessary to put proper effluent treatment protocol in place. B. It is necessary to promote environmental awareness among people. C. Spread of drug-resistant bacteria cannot be done away with as it is inherent in modern medical care. D. Pharma manufacturing companies should be set up in remote rural areas away from crowded towns and cities. So, A is the answer.
क्योंकि प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स लगाने ज़रूरी हैं। अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, एफ्लुएंट होते रहेंगे तो अवेयरनेस कुछ नहीं करेगी। एंड ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया भी की बात नहीं की गई है इसमें। एंड यहाँ पर दूर बनाने की कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग दूर हो तो ये भी ठीक नहीं है, दैट इज नॉट फीजेबल। और ये पैसेज में कहा भी नहीं गया है, तो ए इज द आंसर। पैसेज 3, बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन accrue only when students complete and leave school after having acquired the gateway skills. Like one learns to walk before running, similarly one picks up advanced skills only after picking the basic foundational skills. The advent of the knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. Without a strong learning foundation at the primary level, there can be no improvement in higher education or skill development. 53. Which one of the following statements best reflects the crux of the passage? A. To become a global power, India needs to invest in universal quality education. यही ठीक है. India is unable to become a global power because it is focusing or promoting knowledge economy. C. Our education system should focus more on imparting skill during higher education. D. Parents of many school children are illiterate and are unaware of benefits of quality education. So A is the answer. बाकी तीन irrelevant हैं, आप इन्हें दोबारा पढ़कर देख सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चंस। 54. 40 children are standing in a circle and one of them, any child one, has a ring. तो उन 40 में से हमने कोई भी एक बच्चे को नंबर 1 कहा और उसके पास एक रिंग है। The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to child 2, child 2 passes on to child 4, child 4 passes on to child 7, and so on. After how many such changes, including child 1, will the ring be in the hands of child 1 again? तो ये सर्कल है और सर्कल के यहाँ पर 40 बच्चे खड़े हैं और मान लो ये चाइल्ड 1 है और ये 40 बच्चों को क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे घूम रही है रिंग। तो पहले इसने सेकंड को दी, सेकंड ने फोर्थ को दी, फोर्थ ने दी सेवंथ को। तो हम इसमें सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस आ रहा है कि हम इसमें 1 2 3 4 जोड़ रहे हैं। मतलब 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया और फिर 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आ गया, 3 जोड़ा तो 7 आ गया, ये जो सीक्वेंस यहाँ दिखा रहे हैं। और फिर 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा एंड 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में हम 7 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, 37 में हम 9 जोड़ेंगे, 37 में 9 जोड़ा तो 6 आ गया, मतलब वो 6th चाइल्ड पे आ गया फिर से। तो 1 तो आया नहीं, सेकंड राउंड शुरू हो गया। 6 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39 आएगा, फिर 39 में 13 जोड़ेंगे, 39 में 13 जोड़ा तो 12 आ जाएगा, मतलब फिर तीसरा राउंड शुरू हो गया, 12वें नंबर के बच्चे पे आ गया। अभी भी 1 नहीं आया, फिर 14 जोड़ा तो 12 में 14 जोड़ा तो 26 आ गया, 26 में 15 जोड़ा, 26 एंड 15 इज 41। तो 41 क्या हुआ, 40 के बाद 1 आएगा तो फर्स्ट चाइल्ड आएगा, तो मॉडुलो 40 भी कह सकते हैं। तो जो 41th चाइल्ड है, क्योंकि जब हम इसमें 26 में जोड़ रहे हैं तो ये 41, तो 40 के बाद जो पहला बच्चा है वो फर्स्ट है, तो दैट विल बी, तो इसका आंसर होगा
सच चेंजेस, तो 15 चेंजेस हुए। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 55, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस z z y y y। सो 2 3 4 बार x, 5 बार w। तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, रिवर्स में, और फिर क्या 2 3 4 इस तरह से चल रहे हैं। 1 नहीं है यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर है 5। तो हम ए तक अगर जाएं तो बेसिकली कितने हैं ये 26 हमारे पास नंबर्स हैं अल्फाबेट। तो हमें 26 अल्फाबेट हैं, तो नेचुरल नंबर का समेशन हमें पता होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन इसमें 1 नहीं था। अगर हम सीक्वेंस देख रहे हैं ये 2 से शुरू हुआ है, तो इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और n यहाँ पर कितना होगा, तो हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो z जिसके लिए 2 है और y के लिए 3 है, तो ये अगर हम a से शुरू करते तो 1 से शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, तो 26 आते। लेकिन ये 27 तक जाएगा। a के लिए जो है 27 टाइम्स लिखा जाएगा, क्योंकि 1 टाइम वाला इसमें से मिसिंग है। अल्फाबेट 26 है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है 2 3 4 5, ये 5 हमारा W के लिए है। 4x 5 टाइम्स, A जो है 27 टाइम्स होगा, तो 27 इंटू 28/2, और इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। सो दिस इज 14 इंटू 27 माइनस 1। सो 378 माइनस 1 मीन्स 377 वैल्यू आ गई। अब उसका मिड पॉइंट पूछ रहा है, मिडिल टर्म, तो ये इसके बाई 2 होगा, तो दैट इज 188.5। तो मतलब 189th टर्म जो है मिडिल टर्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं 189 कौन सी होगी, मतलब कि समेशन हमारा 189 आ रहा है, n हमें निकालने हैं। सो 189th टर्म, तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी टर्म आती है। तो हम A से शुरू करें, 27 A की हो गई, B की हो गई 26, इन्हें हम ऐड कर देंगे। C की हो गई 25, D की हो गई 24, E की हो गई 23, F is 22, G is 21, H is 20, एंड जैसे कि H भी है I भी है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है। सो दिस कम्स, सो ये समेशन 88 आ रहा है। सो समेशन ऑफ ऑल दीज इज 88। तो अगली जो भी टर्म होगी वो 189th टर्म होगी। तो जैसे हमने कहा था ये A B C D E F G H, तो I आएगी। I का जो फर्स्ट टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। सो I इज द आंसर, B इज द आंसर। नेक्स्ट इज 56 क्वेश्चन, इज P इज ग्रेटर देन Q। स्टेटमेंट 1, P मल्टीप्लाइड Q इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं। एंड स्टेटमेंट 2, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। Which one of the following is correct in respect of the above question and the statements? A. The question can be answered by using one of the statements alone, but cannot be answered using the other statement alone. P Q greater than 0 है, तो मान लीजिए 2 and 3 हैं, तो 6 आ गए। 3 and 2 हैं, तो भी 6 हो गए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ग्रेटर देन 0 हो रहे हैं। लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते कि P ग्रेटर है या Q ग्रेटर है, नहीं पता चला। P स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे 4 हो गया, एंड ये तो ग्रेटर देन Q नहीं है, तो ये हट गया, तो ये हो गया 9। 9 इज ग्रेटर देन 4, तो इससे ये फुलफिल हो रहा है। लेकिन इसमें तो 2 इंटू 3 भी था, तो हम नहीं कह सकते, और नंबर तो हमें पता ही नहीं P एंड Q क्या है। सो जो ये कंडीशन है पहली वाली, वो सेकंड से नहीं क्लियर हो रही है, तो कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो गया, और इससे कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन Q। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग
ईदर स्टेटमेंट अलोन। अब पहले में हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस नंबर है, तो अगर माइनस नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये -2 इज ग्रेटर देन -3, तो ये p इज ग्रेटर देन q हो गया, एंड यहां से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया। और इसी में हम कह सकते हैं 4 इज नॉट ग्रेटर देन 9, जबकि यहां पर ये फुलफिल हो रहा था, p इज ग्रेटर देन q हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा है। निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इसमें तो डी हम यही कह सकते हैं कि आंसर जो है नहीं दिया जा सकता। सो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ये ठीक है, यहाँ क्या है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग, नो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। टुगेदर में भी नहीं हो रहा, अगर हम देखें ये -2 -3 और 4 एंड 9 और पॉजिटिव वाला, तभी भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज 57, इज p प्लस q माइनस r ग्रेटर देन p माइनस q प्लस r वेयर p q एंड r are integers। Statement 1, p minus q is positive. Statement 2, p minus r is negative. Which one of the following is correct in respect of the above question and the statements? A. The question can be answered by using one of the statements alone but cannot be answered using the other statement alone. B. The question can be answered by using either statement alone. C. The question can be answered by using both the statements together but cannot be answered using either statement alone. D. The question cannot be answered even by using both the statements together. तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करें कि ये ग्रेटर देन है, हम इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा दें, तो क्या हुआ, पी पी तो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्यू को इधर ले आए तो 2q इज ग्रेटर देन, और r को उधर ले गए 2r, 2q इज ग्रेटर देन 2r, 2 कैंसिल हो गए तो q इज ग्रेटर देन r, तो ये मीनिंग है। अब यहाँ कह रहा है p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, तो हमें ये चेक करना है, p इज ग्रेटर देन q देन इट इज पॉजिटिव, तो एक आ गया, लेकिन r के बारे में हमें पता करना। सेकंड में r है तो हम इससे तो आंसर नहीं निकाल पाए, p माइनस r इज नेगेटिव मीन्स r इज ग्रेटर देन p, तो यहाँ पे ही लिख दें इसके आगे इस वाले से कि r इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन q, तो ये एक हमारे पास इन तीनों का रिलेशन आ गया, सीक्वेंस आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, r इज ग्रेटर देन q, r इज ग्रेटर देन q, जबकि हम यहाँ ऑब्टेन किए थे q इज ग्रेटर देन r, तो ये तो इस चीज का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जो हमारा पहले क्वेश्चन था उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से ये वाली जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये नहीं ट्रू है। सो इट इज नॉट ग्रेटर देन p प्लस क्यू माइनस आर इज नॉट ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, तो हमने दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आंसर दिया, सो आंसर इज सी। 58, in a party 75 persons took tea, 60 persons took coffee and 15% took both tea and coffee. No one taking milk takes tea. Each person takes at least one drink. Question, how many persons attended the party? Statement 1, 50 persons took milk. तो ये तो डायरेक्टली है कि नहीं आंसर दे रहा है। Then statement 2, number of persons who attended the party is 5 times the number of persons who took milk only. Question है how many persons attended the party, तो ये तो 50 persons took milk अपने आप में कुछ नहीं बता रहा है, तो हम इसको तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। सेकंड को चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारे पास 75 persons हैं, जिसमें से ये टी लिए, 75 persons ने टी लिया और 60 persons ने कॉफी लिया, ये 60 हैं। These people they took, these are coffee and
15 ने दोनों ली, ये 15 है, तो 75 में से 17 गए, ये 60 बचे, ये 15 है, ये 60 बचे, और कॉफी वाले बचे 60 में से 15, तो ये 45 बचे। तो हमें देखना है सेकंड से हम ले सकते हैं आंसर कि नहीं। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक। अब जो मिल्क ले रहे हैं वो टी तो ले ही नहीं रहे, तो इनमें तो कोई कॉमन नहीं है। कॉफी के साथ इसका मतलब वो कॉमन है जो कि मिल्क ले रहे हैं। ये वाले मिल्क ले रहे हैं और ये वाले सिर्फ मिल्क ले रहे हैं। ये मिल्क और कॉफी दोनों ले रहे हैं ये वाले। वी डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर। दिस इज मिल्क प्लस कॉफी, मिल्क प्लस टी है ही नहीं। नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी is 5 times the number of persons who took milk only। तो milk only ये हैं जो कि 45 में से कम है, से x, ये x है, which is less than 45। इसका 5 times total number of है, तो 5x हो गई। ये सब इन्होंने पार्टी अटेंड की। 5x is equal to, अब हमें ये निकालना है कि x कैसे हम डिसाइड करें। 45 ये वाला है, which were having this was 45 because we had written earlier, we are writing it again। so हमें नहीं पता x, हम इस वाले को जो कॉमन है मिल्क प्लस कॉफी, इसे y ले लेते हैं। so y ये 45 है। तो अब स्टेटमेंट कहता है कि 5x is equal to 60 जिन्होंने टी ली, 15 जिन्होंने कॉफी टी ली, देन 45 जिन्होंने कॉफी ली, और इसी में वो भी आ गए जो कॉफी प्लस मिल्क वाले थे, क्योंकि ये भी इसमें आ गया। अब ये वाले को हमने जिन्होंने सिर्फ मिल्क लिया वो x थे, दैट इज इक्वल प्लस x इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। सो दिस गिव्स 120 प्लस x इज इक्वल टू 5x, मतलब 120 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू 30। अगर हमारे पास x 30 आ गया तो हम इसमें जोड़ देंगे तो 150 हो गया, तो हम सेकंड से आंसर निकाल सकते हैं। एलोन सेकंड इज सफिशिएंट, तो आंसर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब सेकंड से एलोन, बट कैन नॉट बी, और फर्स्ट से नहीं। सो ए इज द आंसर। पहले इंग्लिश में क्वेश्चंस करते हैं, फिर पैसेज हिंदी में पढ़ेंगे। 59 कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर। स्टेटमेंट द नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो ये 1 2 3 को अगर हम लें तो 1 2 3 मीन्स 6, और समेशन भी 6 आ रहा है इसका, और मल्टीप्लीकेशन भी 6 है। सो 1 2 3 3 डिजिट भी है, और ये कैसे भी हम लिख सकते हैं 3 2 1 या 2 3 1 मीन्स देयर में बी 6 वेज टू राइट इट। तो 6 नंबर बन जाएंगे इससे। और इसमें हम कोई देखें 3 1 2, तो ये 6 है प्रोडक्ट, और ये इसका एडिशन है। तो 6 पंज 30 एंड 6 दूनी 12, डिवाइड भी हो रहा है। लेकिन ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो हम कह नहीं सकते कि ये इसमें हम, इसका मतलब हमें कोई एक नंबर और मिल जाएगा जो कि डिविजिबल बाय 6 है। 132 करें, 132 बाय 6, ये भी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये भी डिवाइड हो गया। तो हमें नहीं पता कि 132 है कि 312 है। सो नॉट वेरी श्योर, बट वी got 2 numbers at least. We may search, then we may find more, but 2 are sufficient for this part. Then we have the number is divisible by the sum of the digits of the number। तो इन सब में इक्वल था पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, जबकि नंबर तो कई हो सकते हैं, 111 101 235, कोई भी नंबर हो सकता है, 256 181 222 में भी मैनी। यहाँ देखें तो इसका सम 2 आता है, यहाँ देखें तो 10 आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ 3 आ गया, तो बट यहाँ पर हमारे पास 132 का प्रोडक्ट जो है वो 6 है, एंड
सम भी 6 है, तो 132 एंड 312 में ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है इन दोनों में, 312 में एंड 132 में। लेकिन हम ये श्योर नहीं हो रहे हैं कि कौन सा नंबर है इसमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। तो हम आंसर नहीं कर सकते, सो डी इज द आंसर। नंबर तो हमें मिल रहे हैं बट वी आर नॉट श्योर विच वन। 60 फॉर 5 चिल्ड्रन विद एजेस ए इज लेस देन बी, लेस देन सी, लेस देन डी, लेस देन ई, एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 years। सो पहले की x मान ली, दूसरे की x+2, तीसरे की x+4, देन x+6 एंड x+ मीन्स पहले में 2 जुड़ेंगे, दूसरे ये सेकंड चाइल्ड में, फिर थर्ड चाइल्ड एंड फोर्थ चाइल्ड एंड 5 हो गए, तो 5x हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। 5x + 2 + 4 6, 6 6 12 एंड 8 20। ये टोटल एज है सब बच्चों के मिला के 5x + 20। इसका मतलब क्या लिया हमने, x, x+2, x+4, x+6, x+8। इसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो बराबर है, एवरेज दी गई है इसमें। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो वो x होगी, x निकालना है। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द यंगेस्ट, ये स्टेटमेंट है, ये कंफर्म होगा आखिर में। ये क्या है, स्टेटमेंट टू। द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8। सो ये जब हमने डिवाइड किया 5 से तो दिस इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 × 5 40 हो गया, 20 उधर ले गए 25, x इज इक्वल टू 20, सो x इज 4, x इज इक्वल टू 4, तो 1 की 4 हुई, देन 6 4 6 देन 8 देन विल बी 10 एंड देन विल बी 12। तो जो पहला स्टेटमेंट है, एल्डेस्ट इज 3 times, तो 12 इज 3 times ऑफ द यंगेस्ट 4, तो ये भी सही हो गया। Which one of the following is correct in respect of the above questions and the statements? तो यहाँ पर वही आंसर्स हैं कि एक को कर सकते हैं यूज, दोनों यूज करके हमने आंसर निकाला है। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ये ठीक है क्योंकि पहले से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये 3 times है, तो इससे हम यहाँ नहीं यूज कर पाए। इफ वी वांट टू डू देन इट विल बी लाइक दिस कि x है और दूसरी है x+8 जो एल्डेस्ट है। यहाँ से भी हम, क्योंकि बाकी की इंफॉर्मेशन ये वाली तो यहाँ से ली हमने, सो दिस इज 3 times, तो इसका 3, तो ये इक्वल है। सो 3x इज इक्वल टू x+8, सो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ से भी आ गया, x इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ से मिल गया। तो ये जो कह रहे हैं, तो हमें स्टेटमेंट 1 ही काफी था, क्योंकि हमने कहा पहले x है, फिर उसमें 2 2 जोड़ते गए, और फिर स्टेटमेंट 1 ने कहा कि एल्डेस्ट जो है 3 times है, तो यहाँ से x आ गया 4, हम निकाल सकते हैं। ये एवरेज वाली बात हम ना भी यूज करें तो भी हमें यह आंसर मिलता है। सो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। हाँ, क्योंकि सेकंड से भी आ गया तो बी इज द आंसर। अब पहले ये पैसेज को हिंदी में पढ़ेंगे तब इंग्लिश में पढ़ेंगे।